Welcome everyone to the lecture of Sanskritization. In today's topic, we will study about barriers or obstacles in the process of Sanskritization. In the last topic or last lecture, we have studied that what are the factors, what are the motivating factors which are guiding the process of Sanskritization, and what is the process of Sanskritization. I am just reviewing or revising the concept that what is Sanskritization. First of all, we have studied that introduction of Sanskritization, by whom it was started and developed, and in which book, in which year. Then it was the concept developed through the concept of Brahminization. And what is Sanskritization? It is the process of upward mobility of lower caste people to the higher caste, change in the positional change, not the structural change in the social hierarchy. And it was developed by M.N. Srinivas. It not only can be interpreted in social sphere, but also it can be interpreted, or we can say explained in the basis of cultural, ideological and thinking level of changes. Okay. And when we emphasize the process of Sanskritization, we have seen that the process of Sanskritization requires the social sanctions, social sanctions and social consensus in order to indulge in the reference group, or in order to become a member of the reference group. Okay, this is the knowledge of previous videos or previous lecture. Now in this video we will study the barriers or obstacles in the process of Sanskritization. So let's start. What are the barriers or obstacles in the process of Sanskritization? It takes an indefinite course of time. Even one or two generations must pass. Lower strata progressively adopts, perform and imitates the lifestyle, ways of living and culture of reference group. Chances of acceptance become higher caste. Increases become higher caste. Okay, in the last video we have discussed the Sanskritization process demands or requires the social sanctions and social consensus among the real members of the reference group. So when the real members of the reference group will approve the lower caste or the values of the lower caste, then only they can be Sanskritized. Then only they can move forward, or you can say move to the upper strata. But it is not a easy process. It was a difficult process because it took an indefinite period of time, even one or two generations. Okay, lower strata people started to imitate, adopt and perform the lifestyle, ways of living, culture, language, ideology of the reference caste. But the reference caste people were not always ready to adopt or give sanctions to the lower strata people. The second point, not definite or exact period of time to be accepted as socially sanctions. It means there was no surety or no certainty that they would be given social sanctions if they will follow the this point. देखो, जैसे कि हमारा क्या होता है, एक डिग्री पाने के लिए क्या होता है, हमें कुछ करना पड़ता है. जैसे कि हमें ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, तो 3 इयर्स का, अभी 4 इयर्स का हमें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, ग्रेजुएशन डिग्री मिलता है. लाइकवाइज ये लोग जब यहाँ नीचे स्तर में है और लोअर कास्ट में है, उन लोगों को अपर कास्ट को जाने के लिए कुछ वैल्यू नॉर्म्स के फॉलो करना पड़ता है जो कि रेफरेंस ग्रुप का रहता है. बट ये श्योरिटी नहीं रहता है कि ये अगर फॉलो करेंगे तो रेफरेंस ग्रुप उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे कि तुम लोग अपर कास्ट के पीपल हो बोल के. जैसे कि हम अभी जैसे ग्रेजुएशन का जितना भी हम अगर नॉर्म्स देंगे, सेमेस्टर देंगे, अच्छे से एडमिशन करेंगे, इवैल्यूएशन होगा हमारा, तो हमें क्या होता है, ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता है 3 इयर्स 4 इयर्स आफ्टर. देयर वाज अ सर्टनिटी. ओके, बट हियर देयर वाज नॉट सर्टनिटी. यहाँ कोई सर्टनिटी नहीं था, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं था, कि कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जिसके द्वारा कि ये लोग सांस्कृटाइज हो सके कि लोअर कास्ट पीपल will be recognized as the upper caste people or reference group. This was the problem. Okay, then here there is an important term, that is anticipatory socialization.
here anticipatory socialization may be adopt or imitate, that is functional, or some cases dysfunctional. And what is anticipatory socialization? Non-member persons indulge in a particular group to adopt values arising out of sensitization. तो क्या होता है, जितना टाइम लोअर कास्ट पीपल अपर कास्ट को इमिटेट करते हैं, अगर अपर कास्ट पीपल लोअर कास्ट पीपल को रिकॉग्नाइज करते हैं, देन डेट मीन्स उन लोगों को सोशल सेंक्शन मिल गया, सोशल कंसेंसस मिल गया, एंड सोशल कंसेंसस हो जाने से वो लोग संस्कृताइज हो गए. दिस इज द फंक्शनल एस्पेक्ट. बट in some cases they may face disapproval. In some cases the higher strata people may reject the lower strata people by saying that you are not following the real norms and values of the upper caste or reference group. So there would be chances that they may face disapproval, and this is called the dysfunctional aspect of Sanskritization. Okay, the imitating, as a result of which what happened, the imitating caste in the process of Sanskritizing itself loses many of its original features and function. Imitating caste dysfunctional as a whole and as a separate entity emerge in threatening condition. जितना टाइम वो लोग इवन कोई टाइम पीरियड नहीं था, 1 जनरेशन टू 2 जनरेशन, वो लोग अगर अपर कास्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनका वैल्यू नॉर्म्स को फॉलो करें इन ऑर्डर टू गेन सोशल इक्वलिटी इन द सोसाइटी. एंड जितना टाइम जो रेफरेंस ग्रुप उनको रिजेक्ट कर देते थे, डिसअप्रूवल देते थे, तो ये लोग क्या हो जाते थे, और ज़्यादा उन लोगों को मतलब डिसफंक्शनल हो जाते थे. ना ही वो लोग अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर था, ओरिजिनल ट्रेट था और ओरिजिनल वैल्यू नॉर्म था, वहाँ भी नहीं रह पाते थे, कि हायर कास्ट पीपल के नॉर्म्स वैल्यू में भी नहीं आते थे. तो वो लोग कोई भी ब्रैकेट भी नहीं है, ना ही वो लोअर कास्ट में गिनती हुए, ना ही अपर कास्ट में. तो वो लोग का एक एंटिटी जो था सोसाइटी में, वो एंटिटी लूज़ होने लगता है, और एंटिटी लूज़ होने के बाद वो एक थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है. हुआ थ्रेटनिंग कंडीशन, why threatening condition? Because that group now become not suitable for the society. That means they are जैसे कि उन लोगों को मतलब सोसाइटल कंडीशन से, सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़, एक्टिविटी से जितना टाइम उनको डिवार किया जाता है, ना ही उनको लोअर कास्ट पीपल लोग एक्सेप्ट करते हैं, ना ही अपर कास्ट पीपल लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो वो लोग एक सोसाइटी में थ्रेट बन जाते हैं. जैसे कि हम देखते हैं जितना भी जैसे कि मतलब जितना भी टेररिस्ट ग्रुप सब हैं, उन लोगों को जितना टाइम कोई भी रिलीजन में, कोई भी कंट्री में उनका इंटरेस्ट जितना टाइम फुलफ़िल नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए वायलेंस मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, सबको थ्रेट दिखाते हैं इन ऑर्डर टू फुलफ़िल देयर इंटरेस्ट. यहाँ पे ये यहाँ जो इमिटेटिंग ग्रुप है, जो इमिटेटिंग कास्ट और लोअर कास्ट है, उनका मेन मकसद क्या है, उनको अपर कास्ट में जाना है, उनको रेफरेंस ग्रुप का जो वैल्यूज़ नाम फॉलो करके उनको भी सोशल इक्वलिटी गेन करना है. जितना टाइम उनका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होता है, और प्लस वो जो नीचे वाला लेवल में भी थे वहाँ भी उनको प्लेस नहीं दिया जाता है, तो वो लोग एक सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं. दिस प्रोसेस बिकम्स दी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. ना ही ये ग्रुप का मेंबर रहते हैं, ये ग्रुप का, तो वो लोग को थ्रेट बन के सोसाइटी में एक थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करता है, एंड इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कास्ट सिस्टम मोर डिस्टर्बटेड देन रिजिड, लिटिल कंसेंसस गेट. जैसे कि मैं बताई, इंडियन कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, बट जितना रिजिड था उससे ज़्यादा मोर डिसरप्टेड था, डिस्प्यूटेड था. कैसे डिस्प्यूटेड था ना, सोसाइटी में ऐसा कास्ट था वहाँ का वैल्यू नॉर्म्स था, बट वैल्यू नॉर्म्स यूनिफाइड नहीं था. जैसे कि एक स्टेट में जो वैल्यू नॉर्म ब्राह्मण लोग फॉलो कर रहे थे, और एक जगह पे वो वेरी कर रहा था. जैसे कि संक्रांति को यहाँ हमारे साइड में, जैसे कि उड़ीसा में संक्रांति को अच्छा नहीं है बोलते हैं, मतलब इतना शुभ नहीं माना जाता है, बट साउथ इंडिया में क्या होता है, उसको शुभ माना जाता है. डेट मीन्स वही फेस्टिवल है, वही मतलब दिन है, बट उसको जो मानने का तरीका है एक जगह से और एक जगह पे वेरी कर रहे हैं. जो ट्रेडिशन रहता है एक जगह पे और एक जगह में वेरी करता है. जो ये ट्रेडिशन वेरी कर रहा है, तो मैं भी एक जगह, एक प्लेस के लोग और एक प्लेस में जितना शिफ्ट होते हैं, तो वो जो ट्रेडिशन इक्वल नहीं होता है. सो डैट वहाँ पे जो शिफ्टिंग जगह पे जो रेफरेंस ग्रुप रहते हैं, वो लोग जो इमिटेटिंग ग्रुप का
जो इमिटेटिंग स्टाइल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए रिजल्ट ऑफ विच इंस्पाइट ऑफ देयर इफोर्ट्स इंस्पाइट ऑफ देयर इफोर्टलेस अटेम्प्ट्स दे कैन नॉट sanskitize themselves. Okay, so little consensus was gained by the imitating group. Understood? Then next point, stratification not universal in character. जो मैं अभी बताई, wide variation in ritual patterns even in the same caste and different region. तो एक ही कास्ट रहेंगे, बट अगर उनका प्लेस वेरी करता है तो वहाँ पे जो रिचुअल स्टाइल होता है, मेरे सिस्टम सब जगह पे एक रहता है, नहीं रहता है. ब्राह्मण जो साउथ इंडिया में है और जब नॉर्थ इंडिया में उनका वेडिंग पैटर्न ठीक रहेगा, मतलब सेम रहेगा, नहीं रहता है, वो वेरी करता है. तो यहाँ का अगर साउथ इंडिया में अगर कोई मान लो कि कोई इमिटेटिंग ग्रुप है, वो अगर शिफ्ट होके नॉर्थ इंडिया आया, नॉर्थ इंडिया में वो अगर साउथ इंडिया का नॉर्म्स वैल्यू फॉलो करेगा, तो क्या उसको रेफरेंस ग्रुप ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ का वेरिएशन हो रहा है ट्रेडिशन एंड कल्चर में. सो देयर वाज लेस पॉसिबिलिटी टू एक्सेप्ट सोशल कंसेंसस एंड टू बिकम संस्कृताइज देमसेल्व्स. ओके, रीजनल हायरार्की इन कास्ट स्ट्रक्चर. सो इसको हम बोल सकते हैं कि रीजनल हायरार्की रीजन टू रीजन कास्ट स्ट्रक्चर में वेरी कर रहा है और उसके वजह से वो लोग संस्कृताइज नहीं हो पा रहे हैं. रिचुअल पैटर्न्स वेरी फ्रॉम रीजन टू इवन इन द सेम कास्ट. सोशल सेंक्शंस इन वन रीजन ड्यूरिंग वन पीरियड, ये एक एस्पेक्ट था. क्या था कि एक जगह से और एक जगह में सोशल पैटर्न, सोशल रिचुअल पैटर्न्स वो वेरी कर रहे हैं. और एक बात है कि यहाँ लिखा हुआ है कि सोशल सेंक्शन इन वन रीजन ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ टाइम मे नॉट बी सक्सेड इन अनदर रीजन और एट अनदर पीरियड ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ टाइम. तो एक ही साउथ इंडिया में अगर देखेंगे, 5 साल पहले जो रिचुअल्स था, मे बी 5 साल के बाद वो चेंज हो सकता है. 10 साल पहले अगर जो जनरेशन था जो मान रहा था, 10 साल के बाद अगर कोई जनरेशन है वो दूसरा मानेगा. तो यहाँ पे एक वेरिएशन क्रिएट हो रहा था. सो दैट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर फेसिंग problems to sanskitize themselves. Then the next point, the places where the caste stratification was clearly defined, the process of sanskitization did not lead much success, takes time to become fruitful. तो जहाँ पे कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन क्लियरली डिफाइंड था, वहाँ पे संस्कृताइजेशन अच्छे से हो रहा था. ईजी टू सम एक्सटेंट फॉर ट्राइब्स एंड अदर एलियन एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम आउटसाइड हिंदुइज्म, बट serious problem for untouchables. According to M.N. Srinivas, an untouchable caste is always forced to remain untouchable. Solution: one way to Sanskritize, that is raise of their social status, and spatial mobility might have helped in Sanskritization, moving to a new region where nothing was known about the past of that person, far away from the native village. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में लोअर कास्ट पीपल थे, उनको तो एक टाइप का अगर देखेंगे, ट्राइबल पीपल को सम एक्सटेंट तक अलाउ किया जाता है था संस्कृताइजेशन के लिए. बट जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम के पूरा लोअर पार्ट में थे, डेट मीन्स जो लोग अनटचेबल्स थे, वहाँ पे ऐसा बिलीव था. अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीनिवास वहाँ पे बोलते हैं, एंड अनटचेबल कास्ट इज ऑलवेज फोर्स्ड टू रिमेन अनटचेबल. उन लोगों को हायर कास्ट में एंटर करने के लिए, हायर कास्ट में सोशल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, एनी टाइप ऑफ अफेयर्स में इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी नहीं दिया जाता था. तो उन लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगा? अगर अनटचेबल्स लोगों को सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, सोशल कंसेंसस नहीं मिलेगा, तो उन लोगों के पास संस्कृताइज करने के लिए क्या रहेगा? एक ही ऑप्शन रहता था, स्पैटियल मोबिलिटी. तो वो जिस जगह के, जहाँ के मतलब वो लोग रहेंगे, रेसिडेंट रहेंगे, वहाँ के लोग जानते रहेंगे कि ये अनटचेबल्स है, तो ये एक जगह से और एक जगह को वो मूव करते थे. सो डैट उनका जो स्टेटस है, उनका जो रिकॉग्निशन है, वो जो शिफ्टिंग वाले जगह पे वो पता ना चले. सो डैट वो लोग इजीली क्या हो सकते हैं? इजीली संस्कृताइज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पास्ट जितना भी इंफॉर्मेशन है related to that person was not known at that place, so they can be easily sanskritized themselves because that place was new for that person. ओके, एंड ऐसा नहीं कि वो लोग जितना नेटिव विलेज है उसी के पास जाते थे, वो लोग दूर दूर जाते थे अपने नेटिव विलेज से. सो डैट वहाँ का उनका जितना भी पता, उसका जितना भी स्टेटस, वो किसी को भी वो जगह पे पता ना चले बोल के. बट स्पाटियल मोबिलिटी का भी कुछ चैलेंजेस था. क्या चैलेंजेस था? पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी बिटवीन रीजन, इंडियन एप्रिहेंसिवनेस
अबाउट सोशल सिक्योरिटी इन न्यू रीजन। अगर वो लोग न्यू रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, वहाँ पे पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, वहाँ पे जो नए लोग हैं उन लोगों के साथ मिल के रहना, ये सब चैलेंज हो जाता था न्यूली शिफ्टेड पर्सन के लिए। So these are the challenges to the process of Sanskritization. Here there will be one question can be asked, that is what are the barriers in the process of Sanskritization. You will clearly mention point wise. First point, that is it takes an indefinite course of time, even 1 or 2 generation. And second point, there was no exact time period for Sanskritization to be accepted as socially sanctions, and this brings the concept of anticipatory socialization. Anticipatory socialization has two aspects, functional and dysfunctional. Then describe some points about it. Then third point में लिखोगे कि इंडियन कास्ट सिस्टम जितना रिजिड नहीं है उससे ज़्यादा क्या होता है, डिसरप्टेड होता है. हियर देयर वाज नॉट यूनिफॉर्म सोशल पैटर्न वाज फॉलोड. सो एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, even in the same caste in different region follow different type of pattern, different type of rituals. So it is difficult for the lower caste people to follow the upper caste rituals or lifestyle. Then fourth point, it is not universal in character or not universal norms or rituals to follow by the lower strata people. That was the regional hierarchy in the caste structure. And the next point is that it was difficult for the tribal people. It was possible to some extent for the tribal people, but it was difficult for the untouchables. And for untouchables there was a limited option or single option, that was spatial mobility. And there would also challenges for spatial mobility, that is political hostility and apprehensiveness in the newer region. ओके, आई होप आपका अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक में अच्छे से हो गया है. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Sanskritization concept. Okay, thank you so much.